Welcome to Desirable Education. I am Nandini and today in this video I will explain you on his being arrived at the age of 23 by John Milton. John Milton is the greatest English poet after Shakespeare, and the poem On His Being Arrived at the Age of 23 is a devotional sonnet which is divided into two parts: octave, the stanza of 8 lines, and sestet, the stanza of 6 lines. First part puts up a question and second part serves the answer to it. So let's start. How soon hath time, the subtle thief of youth, stolen on his wing my 23rd year. So here hath refers to hath and subtle means cunning or clever. So here in this line poet blames time for stealing away his youth. तो यहाँ पे पोएट टाइम को कनिंग थीम बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इसने अपने विंग्स पर मेरी लाइफ के 23 इयर्स चुरा लिए, इसने मेरा यूथ चुरा लिया. My hasting days fly on with full career, but my late spring no bud or blossom sweat. Here hasting days refers to the days of poet youth, and career here means speed and sweat means show. So here in this line poet says that the days of my youth passed away so quickly and I didn't get any achievement. तो यहाँ पे इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि जो उनके यूथ के डेज थे वो बहुत जल्दी पास हो गए और उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की. यहाँ पे इस फोर्थ लाइन में पोइट ने अपने यूथ को लेट स्प्रिंग से एक्सप्रेस किया है. यहाँ पे वो सीजनल मेटाफर का यूज करते हुए अपने यूथ को लेट स्प्रिंग से रेफर करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लेट स्प्रिंग में पौधों में फूल और बर्ड्स आते हैं, उसी तरह से जो हमारा यूथ होता है उस समय हम ढेर सारी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं. बट पोइट कहते हैं कि जो उनका यूथ था वो फुल स्पीड से चला गया और उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट प्राप्त नहीं की. Perhaps my semblance might deceive the truth that I to manhood am arrived so near. Here semblance means appearance. So here in this line he says that my physical appearance is not according to my age. I am going to be an adult now, but I do not seem as old as I am. So तो यहाँ पे इन लाइन्स में पोइट कहते हैं कि मेरी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मेरी एज के अकॉर्डिंग नहीं है और मैं अब मैनहुड की तरफ आ चुका हूँ, बट मैं उतना ओल्ड नहीं दिखता जितना कि मैं हूँ. And inward ripeness doth much less appear that some more timely happy spirits endureth. So here inward means inner, ripeness means maturity. So and timely happy spirits refers to those who are more comfortable with their age. So here in this line poet says that I do not look as old as I am, but mentally I am strong, mentally I am mature, but my mental maturity does not appear as much as it appears in those who are more comfortable with their age. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो मेरी फिजिकल अपीयरेंस है वो मेरी एज के अकॉर्डिंग नहीं है, बट मेंटली मैं मैच्योर हूँ और जो मेरी मेंटल मैच्योरिटी है वो उतनी अपीयर नहीं होती जितना कि मेरे बाकी साथियों में होती है जो अपनी एज के साथ कंफर्टेबल है. वो टाइम के साथ खुश है क्योंकि वो उतना ही मैच्योर दिखते हैं जितना कि वो है. तो यहाँ पे पोएट कंप्लेन करता है कि जो उनकी अपीयरेंस है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है और उनकी जो मेंटल मैच्योरिटी है उनमें उतनी शो नहीं होती जितना कि उनके बाकी साथियों में शो होती है. Yet be it less or more or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot, however mean or high, toward which time leads me and the will of heaven. So here strictest measure means very exact and clearly defined. Lot means destiny and the will of heaven refers to God. So here in these line poet says that whatever maturity appears in me, whether it is less or more, soon or slow, it shall be very exact and clearly defined, and it will be according to my destiny, according to the will of God and towards which time leads me. तो यहाँ वो कहते हैं जो भी मैच्योरिटी मुझ में दिखाई देती है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, चाहे वो धीरे हो या जल्दी हो, वो क्लियरली डिफाइंड होगा और जो भी मेरी किस्मत में लिखा होगा, जो भी भगवान की इच्छा होगी और जिस तरफ ये समय मुझे ले जाएगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा. All age if I have grace to use it so,
as ever in my taskmaster's eye. So here in these line he says that whatever I have attained, if I have ability to use it, then God will leads me to what is right. So here in these line he completely surrender himself to the God. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो भी है, अगर मुझ में एबिलिटी है इसे यूज करने की, तो मेरी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो गॉड की विल के अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे वो कंप्लीटली खुद को गॉड को सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं उनकी लाइफ में जो कुछ भी है, उन्हें जो भी प्राप्त हुआ है वो गॉड की विल के अकॉर्डिंग है और उनकी डेस्टिनी के अनुसार है। अगर हम ऑन द होल पोयम को देखते हैं तो ये पोयम का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पोएट कंप्लेन करता है कि टाइम ने उनके यूथ को चुरा लिया और उनकी अपेयरेंस उनके एज के अकॉर्डिंग नहीं है और उन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया। और पोएम के सेकंड पार्ट में वो खुद को कंसोल करते हैं और कहते हैं कि उनको जो कुछ भी मिला है, उनमें जितनी भी मैच्योरिटी है, उन्होंने जो कुछ भी पाया है वो गॉड की विल के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे वो कंप्लीटली खुद को गॉड को सरेंडर कर देते हैं। आई होप दिस पोएम इज क्लियर टू यू ऑल। इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।